This is chapter 32 of Lakshmikant. It says State Council of Ministers. इंडिया के स्टेट्स में क्या होता है, सिंपल समझेंगे तो उसको इंडिया के स्टेट्स में अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, बिल्कुल सेंटर और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह। सिंपल समझे तो देखा जाए तो चीफ मिनिस्टर जो होते हैं हमारे सीएम स्टेट के मेन बॉस होते हैं, ठीक है। ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, सीएम प्लस मिनिस्टर्स होते हैं, मिलकर से चलाते हैं स्टेट्स को। रियल पावर गवर्नर के पास होती है, ठीक है। रियल पावर किसके होती है, गवर्नर के पास होती है। और सीएम और मिनिस्टर के पास क्या होता है, वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं और डिफेक्टिव एग्जीक्यूटिव गवर्नर होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होता है, क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए दो मेन आर्टिकल दिए हैं, दैट इज आर्टिकल 163 एंड आर्टिकल 164। सो आर्टिकल 163 क्या है कि गवर्नर को काम करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेनी पड़ती है, ठीक है। 163 ये बोलता है अगर गवर्नर कोई काम करता है तो उसके लिए एडवाइस मिलता है, लेनी है उनको स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। मतलब गवर्नर मोस्टली सीएम और मिनिस्टर्स के ही बात मानते हैं, ठीक है। सेकेंड है आर्टिकल 164। सो आर्टिकल 164 मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होंगे, कितने टाइम तक पर कितने टाइम तक कितने टाइम तक रहेंगे, किसके सामने रिस्पॉन्सिबल होंगे, या फिर क्वालिफाई और ओथ क्या होगा उनका, सैलरी अलाउंस क्या होगा, तो ये सब है। So now we will study Article 163, that is Council of Ministers to aid and advise of the governor. So in that इसका simple meaning क्या होगा, so every state has must have a Council of Ministers, ठीक है। every state must have a Council of Ministers headed by chief ministers, ठीक है। Second, their main job is to help and advise the governor in running the states. So what is their main job? Their main job is to help the governor to running the states. And key points in easy words. So first point is governor normally works on the advice of CM or and ministers. And second, governor is not free to act on his own most of the time. This is the first point. Second point is some special matters are governor's discretions. जैसे कि in rare cases like constitutional breakdown, governor can decide on his own. Okay. Third is governor discretions cannot be questioned in court. Means what? Court cannot ask why governor used his discretions. Minister's advice is secret, so court cannot ask what advice ministers gave to the governors. And bottom line is that governor looks powerful, but real power lies with CM and Council of Ministers. Article 164. So 164 क्या बोलता है, अदर प्रोविजन। सिंपल मीनिंग, दिस आर्टिकल एक्सप्लेन हाउ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड, how long they stay, their member responsibility and rules. Fine. So every breakdown appointments of ministers. Chief ministers is appointed by the governor, and chief ministers are appointed by the governor on the same advice. Sorry, other ministers are appointed on the governor based on the advice of CM and other. And third is some states must have a tribal welfare ministers as per the constitution. Defection rule means if MLA is disqualified for defections, he cannot become a minister. The fourth point is ministers hold office during the governor's pleasure. Fifth point is collective responsibility. Collective responsibility means what here? That if the entire council of ministers is collectively responsible to the state assembly. If assembly pass no confidence motion, whole ministry must resign. And sixth one is oath. The governor shall administer the oath of office and secrecy to our ministers. Means governor administers oath of office and secrecy to ministers. Seventh is membership of legislature.
So a minister who is not a member of the state legislature for any period of 6 consecutive months shall cease to be a minister. Then the eighth point is salary and allowance. Minister's salary are decided by state legislature. Fine. So here Article 167, this tells about the duties of the chief ministers. So what are the duties of chief minister? Simple meaning is that the chief ministers is the main link between the governor and the council of ministers. So he is the main link between the governor and the council of ministers. Second point is first one is inform the governor. Matlab CM must inform the governor about what? About suppose this is CM, so he must inform the governor about what? About the all important decision taken by the council of ministers, how the state is being run, and new laws, bills the government plans to bring, that the CM has to inform to the governor. Governor stays informed through the CM only. Second one is to furnish such information relating to the administration of the affairs of the state and proposal for the legislation as the governor may call. What does it mean? It means if the governor asks for any information, CM must provide it. Third one is refer individual minister's decision. What does it mean? It means if a single minister takes a decision without discussing it in council of ministers, the governor can ask the CM to place that matter before the full council of decision. So this is what suppose a single minister take a decision without discussing it in council of minister. Then what is the role of governor? The governor asks the CM to place that matter before the full council for the discussion. This ensure collective decision making. This is inform collective decision making. And in short, what happened? Article 167 makes and the chief minister that the communication bridge between the governor and the council of ministers. And Article 177 says a right of ministers in state legislature. So what does it mean? Simple meaning is that ministers can speak in the assembly even if they are not a member but cannot vote. Suppose some ministers, if even they are not the member but they can't vote, but they can speak in the assembly. Yeah. So if I'll explain this more, then it does mean every minister has the right to speak and take part in the state legislative assembly, legislative council, and committee of the legislation. But if a minister is not a member of that house, he cannot vote. He can vote, he can speak, but cannot. Next is nature of advice by ministers. What does it mean? Core idea is that although the governor looks powerful, in reality he works on the advice of the chief ministers and council of ministers in almost all matters. What Articles 163 means in simple words? So Article 163 means there is a council of ministers headed by the cabinet chief ministers, fine, and their job is to advise the governor in running the states. A governor must follow this advice except in few discretionary matters. Otherwise, governor has to follow the or advice of the chief minister with the headed by chief minister and its uh, council of ministers. Governor discretions. What are they? The limited powers. If there is a confusion about whether a matter is discretionary or not, governor decision is final. Court cannot question why governor has used this discretion. Second, whether he should or should not use it. Discretion means what here? If some people don't understand what is the discretion, is simple meaning is that so डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि अपने डिसीजन खुद लेना डिसीजन अपने जानबूझ के समझ से ठीक है.
सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीक्रेसी ऑफ एडवाइस. सीक्रेसी ऑफ एडवाइस मतलब क्या होता है? विथ व्हाट एडवाइस मिनिस्टर्स गिव टू द गवर्नर cannot be asked in the court. This ensure confidentiality between the governor and the ministers. So whatever advice the minister gave it to the uh, governor, that is not answerable to the. Amendment of judgment. What is the statement of Supreme Court? Rule that the Council of Ministers must always exist to advise the governor. What does it mean? Uh, Supreme Court 1971 judgment is that even if state assembly is dissolved or minister resign, the council of ministers must still exist to advise the governor. Okay? And old ministry continue as caretaker government until the new one take charge. Next is 1974 judgment. This is very much important. In that, what happened? Governor cannot act on his own in normal matter, except where constitution clearly allowed discretion. Governor must act as a minister's advice. Governor cannot act against minister's advice. That's in 19th Constitution say that is the governor is satisfactory. That does mean it means that satisfactory of the council of ministers, not the personal satisfaction of the governor. So next is the appointment of the ministers. चीफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट चीफ मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करता है. ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता है? जो लीडर असेंबली में मेजोरिटी ऑफ सपोर्ट दिखता है वही सीएम बनता है. बाकी मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट को गवर्नर अपॉइंट करते हैं सीएम के एडवाइस पर. ठीक है, तो कुछ ट्रैवल वेलफेयर मिनिस्टर्स भी होते हैं, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़. इसमें क्या होता है? ट्रैवल मिनिस्टर्स होते हैं. पहले बिहार पर भी रूल था, तो 94 और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2006 के बाद बिहार को से एग्जाम कर दिया गया. रीज़न बिहार में शेड्यूल एरिया नहीं है, ट्राइबल पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन भी काफ़ी कम है. कौन मिनिस्टर बन सकता है? जनरली को एमएलए या एमएलसी को मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन नॉन मेंबर जो एमएलए या एमएलसी नहीं है, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली या कैंट काउंसिल को भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है. कंडीशन क्या है? उस पर्सन को 6 महीने के अंदर इलेक्शन जीतना हो और नॉमिनी के थ्रू लेजिस्लेचर के मेंबर बनना होगा. अगर 6 महीने में नहीं बन पाए तो मिनिस्टर पोस्ट चली जाएगी. लेजिस्लेचर का दोनों हाउस में राइट्स. अगर मिनिस्टर्स असेंबली के एक असेंबली का मेंबर है तो काउंसिल मेंबर बोल सकता है, काउंसिल का मेंबर है असेंबली में बोल सकता है. असेंबली का मेंबर है तो काउंसिल में भी बोल सकते हैं, काउंसिल का मेंबर है तो असेंबली में नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते. सिर्फ उसकी हाउस में वॉइस करके वोट करके जिसका वो मेंबर है. ठीक है. नेक्स्ट इज ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ मिनिस्टर्स. इसमें क्या है कि जब मिनिस्टर्स ओथ लेते हैं उस टाइम पे क्या होता है, उनका रूल क्या है? जो कोई मिनिस्टर ऑफिस जाया करते हैं, जो कोई भी मिनिस्टर ऑफिस ज्वाइन करेंगे तो गवर्नर उन्हें ओथ दिलाते हैं. ओथ के दौरान क्या होता है? जैसे ओथ ऑफ ऑफिस, ओथ ऑफ सीक्रेसी, सारी चीज़ें वो करते हैं. ओथ ऑफ ऑफिस का मतलब क्या है यहाँ पे? ओथ ऑफ ऑफिस का मतलब है सिंपल, मिनिस्टर ये प्रॉमिस करते हैं कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रति लॉयल रहेंगे, इंडिया के यूनिटी, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, फेथफुल रहेंगे, एंड कंसिस्टेंटली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस. ठीक है, अपने काम ऑनेस्टली और सिंसियरली करेंगे, सब लोगों को साथ फेयरली से काम करेंगे,
डर या फेवर या नफरत या क्या बेसिस पर। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब मिनिस्टर्स की 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसको मैं शॉर्ट ट्री से बता देता हूँ, मैंने ऑलरेडी इसको सेंट्रल में बता रखा है आपको। तो मिनिस्टर्स की 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहला था कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करते हैं कि सिंपल मीनिंग पूरा काउंसिल मिनिस्टर्स एक होता है और सब मिनिस्टर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसका एग्जांपल इजी समझे तो गवर्नर के हर डिसीजन की जिम्मेदारी सब मिनिस्टर की होती है। मिनिस्टर सिंह और सिंह एक साथ करेंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब अगर असेंबली नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दी है तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, सीएम प्लस सब मिनिस्टर्स। कैबिनेट डिसीजन, सो इसका इजी पॉइंट क्या है? गवर्नर के हर डिसीजन पर डिसीजन की जिम्मेदारी सब मिनिस्टर की होती है। मिनिस्टर सिंह और सिंह एक साथ करते हैं, सिंह और सिंह एक साथ करेंगे। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो सारे मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा अलॉन्ग विद सीएम। कैबिनेट डिसीजन क्या होता है? कैबिनेट का डिसीजन सब मिनिस्टर्स को मानना पड़ेगा। अगर कोई मिनिस्टर डिसीजन के अगेंस्ट है तो या तो सपोर्ट करे या तो रिजाइन करे। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सिंपल मीनिंग हर मिनिस्टर अपने डिपार्टमेंट का काम के लिए पर्सनल रिस्पॉन्सिबल होता है। पॉइंट क्या मिनिस्टर्स गवर्नर के प्लेजर पर ऑफिस होल्ड करते हैं। प्रैक्टिकली गवर्नर किसी मिनिस्टर को सिर्फ सीएम के एडवाइस पर नहीं रिमूव कर सकता। अगर किसी मिनिस्टर का परफॉर्मेंस ख़राब है तो सीएम उसे रिज़ाइन करने को कह सकता है, ये गवर्नर से डिसमिस करवा सकता है। इससे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रांग होती है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? नेक्स्ट इज द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि सिंपल मीनिंग अगर मिनिस्टर्स को डायरेक्ट लीगल एक्शन का प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में है मिनिस्टर के अगेंस्ट, तो गवर्नर पर्सनली रीजनेबल रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं मिनिस्टर्स के एक्ट के लिए। क्या होता है? कोर्ट जनरली क्या करता है? मिनिस्टर्स को एडवाइस के बारे में सवाल नहीं कर सकता जो प्रेसिडेंट को दे रहे हैं। वन लाइन एग्जांपल तो देखिए तो क्या होगा कि इफेक्टिव मतलब सब साथ जिम्मेदारी, इंडिविजुअल अपना का डिपार्टमेंट अपना, और लीगल में डायरेक्ट लीगल अकाउंटेबिलिटी नहीं देगा। ठीक है, नो लीगल मतलब क्या सेंटर देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैटर मिनिस्टर इन द स्टेट्स। कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसमें क्या पता है? साइज़ और रैंकिंग का रूल है इसमें पहला। इसमें क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, इसको सॉल्व बता देता हूँ। इसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एग्जैक्ट साइज़ या रैंकिंग डिफाइन नहीं करता है। ये सब चीफ मिनिस्टर डिसाइड करते हैं सिचुएशन और नीड का हिसाब से। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के 3 टाइप होते हैं, बिल्कुल सेंटर जैसे। स्टेट में भी 3 कैटेगरीज होती हैं। पहला है कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब सबसे पावरफुल होगा, स्टेट का इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हैंडल करेंगे, होम, फाइनेंस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। ये कैबिनेट के मेंबर होते हैं, कैबिनेट मीटिंग्स अटेंड करते हैं, मेजर पॉलिसी डिसीजन लेते हैं, या सीएम के बाद सबसे पावरफुल यही होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। उसके बाद MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। ये कौन होते हैं? इंडिपेंडेंट चार्ज होता है इनका, अपना डिपार्टमेंट खुद देखते हैं। ये आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ अटैक होते हैं। जनरली कैबिनेट के मेंबर नहीं होते कैबिनेट मीटिंग में, नॉर्मल नहीं आते हैं, बट अगर चाहे तो अपने स्पेशल इन्वाइट पे आ सकते हैं। डिप्टी मिनिस्टर्स क्या होते हैं? डिप्टी मिनिस्टर सबसे जूनियर होते हैं, इनको डिपेंडेंट डिपार्टमेंट नहीं मिलता, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट नहीं मिलता इनको, और इनको डिपेंडेंट डिपार्टमेंट मिलता है। मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करना, कैबिनेट मिनिस्टर्स की अटेंड नहीं कर, अगर कैबिनेट मिनिस्टर अटेंड नहीं कर रहा है तो इनको अटेंड करना पड़ेगा। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन काम में हेल्प करनी पड़ेगी। चीफ मिनिस्टर्स का रोल क्या होता है? सब मिनिस्टर्स का टॉप
को टॉप पर चीफ मिनिस्टर होता है। तो सीएम अज्यूम सुप्रीम गवर्निंग अथॉरिटी होता है इन द स्टेट्स में। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मतलब क्या होता है कि कभी कभी स्टेट में डिप्टी मिनिस्टर्स भी होते हैं। मोस्टली क्या होता है पॉलिटिकल रीजन या फिर कोalition ऑफ गवर्नमेंट इसकी वजह से हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेटरी नहीं है कि उनका एडवाइस मांगे ये प्रेसिडेंट। उसका हम पढ़ते हैं कैबिनेट। कैबिनेट में क्या होता है कैबिनेट का एक छोटी सी और पावरफुल बॉडी है। ठीक है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कोर न्यूक्लियस होती है। 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स इसमें होते हैं। रियल पावर स्टेट गवर्नमेंट की इस कैबिनेट के पास ही होती है। कैबिनेट के मेन रूल क्या क्या हैं? पहला है पॉलिसी बनाना, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होना। अगर स्टेट का सब बड़े इज द हाईएस्ट डेमोक्रेटिक अथॉरिटी इन द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ स्टेट, मतलब हाई डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है स्टेट के। सबसे सबसे बड़े पॉलिटिकल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन यहीं ले जाते हैं। पॉलिसी बनाने वाली बॉडी गवर्नमेंट की पॉलिसी कैबिनेट बनाती है। सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट को चलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को चलेगा कि अगर रियल में कंट्रोल कैबिनेट के पास होता है। स्टेट गवर्नमेंट को फंक्शन करने के लिए रियल पावर जो होती है वो इनके पास ही होती है, दैट इज सेंटर के पास। इसको बोलते हैं ये लोग कोऑर्डिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो गवर्नमेंट को एडवाइस देने वाली बॉडी क्या होगा कि एक्टिव एडवाइस पर काम करता है गवर्नर। कैबिनेट की जो भी एडवाइस दिएगी गवर्नमेंट को वो काम करेगा गवर्नर। क्राइसिस इमरजेंसी मैनेजर मतलब फ्लड, रॉयट्स या फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे सिचुएशन में वो हैंडल करते हैं। मेजर लेजिस्लेचर एंड फाइनेंशियल मैटर्स, इसका मतलब इम्पोर्टेंट लॉज और बजट रिलेटेड डिसीजन है। और हायर अपॉइंटमेंट पर कैपिटल सीजर ऑफिस आर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के अपॉइंटमेंट्स पर सेंट हो जाते हैं। कैबिनेट मीटिंग पढ़ेंगे। कैबिनेट मीटिंग में कुछ नहीं है। कैबिनेट मीटिंग क्या होता है? सो कैबिनेट अपने काम कमेटी के थ्रू बन करता है। इसमें चीफ मिनिस्टर के बाद है, चीफ मिनिस्टर बनता है। इसके बाद कैबिनेट कमेटी के टाइप का स्टैंडिंग कमेटी हो गया, परमानेंट होते हैं। लॉ का टर्म का कमेटी हो गया, एडहॉक कमेटी हो गया, टेम्परेरी एडहॉक कमेटी हो गया। स्पेशल प्रॉब्लम के लिए बनाई कमेटी। कमेटी कैसे काम करती है? इश्यू को डिटेल में स्टडी करना और रिपोर्ट प्रोपोजल बनाना, कभी कभी फाइनल डिसीजन भी लेना। कैबिनेट चैलेंज टू अंडरटेक डिसीजन रिव्यू ये चेंज कर सकती है। सर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसके रिगार्डिंग। पहले है 163 बोलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नर। 64 बोलता है अदर प्रोविजन आर मिनिस्टर्स कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट काउंसिल। 166 बोलता है ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर्स एज ए रिस्पेक्ट टू द फर्निशिंग ऑफ मेमोरीज ऑफ द गवर्नर। 177 right to ministers as a respect of the house.